Are you going through a period where you want to study, but notes kholte, you lose concentration, and then you suddenly find yourself picking up your phone and scrolling through social media, and a Telegram notification pops up. When you open it, you find a YPT screenshot of someone studying for 15 hours, and then you start comparing yourself with the person, thereby leading to a cycle of self doubt and overthinking, and you feel helpless. And this keeps on continuing maybe for days or weeks. If this is an Us Bhai Swala moment for you, so congratulations, you have found the right video. Let's break it down, and I'll tell you what I did to break this vicious chain. चलो सबसे पहले let's understand the causes or why is it happening. The first point is a burnout. Again, imagine a situation where you are studying continuously for weeks without a break. You wake up one day to study, but you are still tired. You say to yourself कि चलो let's have some coffee to feel energetic, but even after taking it, you can't concentrate. You believe कि कोई दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लेता हूँ, but still you are not able to study. And then a thought enters your mind कि what if नहीं हुआ? Then that overthinking cycle starts. You are feeling low and इतने unsustainable study schedule की वजह से we have ruined our relationships, and now you don't know what to do. So what's a burnout? It's when you feel mentally depleted, physically exhausted, and emotionally drained. It's a lack of motivation, irritability, anxiety, fatigues and headaches, difficulty concentrating, and decreased memory. A burnout happens when you are feeling overwhelmed by the exam, and due to this stage of perfectionism, along with an unhealthy competition, you are pulling all nighters and living an unbalanced lifestyle with no hobbies, or as Anu Jain would say, किताबों में कर दुनिया है तेरी इन धूल भरे पन्नों में तू क्या ढूंढती. And because of this, there's a lack of sufficient support. नेक्स्ट इज लैक ऑफ अ क्लियर गोल. मान लो बर्न आउट नहीं है एंड तूने डिसाइड किया था कि आज पॉलिटी पढ़ूंगी एंड देन रात में सीए कर लूंगी. पर अब सीए कहाँ से? बाजीराम के, विशन के, नेक्स्ट आईएएस के, राउस के. ये भी डिसाइड हो गया. अब कौन से, ईयरली या मंथली? फिर तुमने डिसाइड किया मंथली करूंगी आज मैं. अब मंथली भी किसके? शेन भाई के, सत्यम भाई के, किसी एक्सवाइट इंस्टीट्यूट के. अब चलो सत्यम भाई के और नोट्स बनने स्टार्ट भी हो गए, पर मन में ये भी आएगा कि शेन भाई भी तो अपने वन पेजर नोट्स भेज रहे हैं, वो भी देख लेती हूँ एक बार. एंड इन सब में यू हैव लॉस्ट अ मेजर चंक ऑफ योर डे, है ना. नेक्स्ट इज डिस्ट्रैक्शंस. अपार्ट फ्रॉम द बेबी मुझे आप टाइम नहीं देते एंड बस यार एक और रील स्क्रॉल कर लेता हूँ. इन वाईटी एंड टेलीग्राम के क्लिक बेट टाइटल्स अफेक्टिंग अस. आई नो वी आर लिविंग इन अ माहौल जहाँ फोमो नहीं होना इजंट ईजी, एंड सिंस दिस एग्जाम इज जस्ट 2 से 3 महीने दूर, वी वॉन्ट टू गिव 100% टू इट. पर फिजिबल है क्या ये सारे इंस्टीट्यूट के सीए करना, या सारी वाईटी स्ट्रैटेजीज देखना? ऑप्टिमम सोल्यूशन ये है क्या? The next point is our discipline has been affected and accountability hampered. Since coaching batches are ending and अब सुबह 7:30 बजे क्लास नहीं पहुंचना, we are becoming indisciplined. पहले अकाउंटेबिलिटी तो थी एटलीस्ट कि 6 बजे उठना है, 6:30 बजे उठना है, नहाना है, धोना है. पर अब क्या, आराम से 11-12 बजे उठ रहे हैं, मज़े मज़े चल रहे हैं. देन ट्रांजिशनल वेदर. दिस टेम्परेचर फ्लक्चुएशन आर डिस्टर्बिंग आवर स्लीप पैटर्न. डाइट चेंज हो रही है. फिर हाफ स्लीप पहनूँ, फुल स्लीप पहनूँ. हाफ स्लीप पहनूँ तो तबीयत ख़राब हो रही है, फुल स्लीप पहनूँ तो गर्मी लग रही है. देन कभी भी बारिश हो जा रही है, क्लाइमेट चेंज 101, एंड इसलिए फिजिकल एक्टिविटी भी डिस्टर्ब हो रही है. एंड देन मूड बेकार भी हो रहा है थोड़ा इस वेदर में. वो शायद सीजनल इफेक्टेड डिसऑर्डर बोलते हैं. ऑल्सो आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा. देन एनजाइटी एंड स्ट्रेस, जिसकी वजह से हमें सेल्फ डाउट हो रहा है एंड इस पर ध्यान है तो मेंटल फटीग. एंड इसको अवॉइड करने के लिए आइदर वी आर स्क्रोलिंग थ्रू आवर फोन या फोन देख रहे हैं. ऑल्सो देर कैन बी मैनी अदर रीजन्स, पर ये मुझे मेन लगे, इसलिए बस ये कवर किया मैंने. These are the steps I took to overcome this issue. I wasn't able to study more than 2 to 3 hours a day back then. Now it's like around 6 to 7 hours a day, which is optimal for me. So step one was to break down the larger tasks into very realistic, small and manageable targets, along with scheduling regular breaks. So for example, I decided to complete Ancient India within a week. I knew I'll take 4 to 5 days for it. I also knew that I'll get bored of history, so decided to touch upon economy as well. I planned what I'll do on day one and day two till day seven, along with the sources. You'll have to make up your mind for this कि भाई कुछ भी हो जाए इसके अलावा निकलना ही नहीं है, इसको 3-4 बार रिवाइज करना है. So I easily completed ANC in 4 days and went on to complete Pillar 1 of Brunalso's notes after that. After deciding what to do, what to study and how to study, I just used to open YouTube and watch a one-shot video on the topic. So I found this one good for ancient India. So it used to go like I'll complete Paleolithic age from this video and then get back to my sources and my notes and PYQs and then again to the video and so on.
तो इसके बाद यू विल हैव टू स्टार्ट ट्रैकिंग योर स्टडी टाइम। अब तुम डिजिटल टाइमर से करो या YPT फॉरेस्ट जैसे ऐप करो, वो तुम्हारी श्रद्धा। ठीक है। अब इसको कैसे यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, शिविन भाई ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इसका। एंड YPT या फॉरेस्ट यूज़ करूँ यार, मैं तो नहीं कर सकता ये यूज़, क्योंकि फ़ोन यूज़ करना पड़ता है साथ में। एंड मेरा मानना ये है कि फ़ोन में दूर रखूँ अपने से बिल्कुल। तो डिजिटल टाइमर काम आ जाता है। मेरे पास दोनों है। ऊपर वाले का साइज़ थोड़ा छोटा है एंड ये मेंस में भी काम आ जाता है, इसलिए मैंने ले लिया था। तो इट्स अ विन विन, 200 रुपये का है बस। हो सके तो ले लेना यार। ये ऑफलाइन में और सस्ता मिल जाएगा मेरे हिसाब से, फिर यहाँ तो 200 का ऑनलाइन। देखो, कंपटीशन खुद से करना है, पर स्टडी ग्रुप में एक अलग ही माहौल होता है, एक अकाउंटेबिलिटी, एक लोनलीनेस की फीलिंग भी कम हो जाती है। एंड देन लास्ट में डिस्कशन। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं तो जब मैं एंशिएंट हिस्ट्री कर रहा था, माय फ्रेंड वाज डूइंग मिडिवल हिस्ट्री, तो हम लास्ट में एक दूसरे को हम पढ़ा देते थे, तो उससे एनहांस रिटेंशन हो जाती है। और ऑल्सो जस्ट सेइंग कि हमने पहले अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, तो टीचिंग मतलब ये नहीं कि तुम 3-3 घंटे लगा रहे हो पढ़ाने में एक दूसरे को, नहीं, वो नहीं होता। 1 या 2 घंटे में आराम से सब कुछ खत्म हो जाता है, दो भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, एक में हो जाता है। देन यार 3-4 दिन अपना स्क्रीन टाइम ट्रैक करो। देखो, मेरा उस टाइम 8 से 9 घंटे था। अब ये 6 भी हुआ, 5 भी हुआ, अब ये लास्ट में 2 आ चुका है। सो मुझे पता है मैं क्या एक्स्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ। मेरा रेडिट है, ये मैं और कम करूँगा। ये अभी 2+ आवर्स रेडिट के हो रहे हैं मेरे, इसमें मेरा अराउंड 1 आवर जाता है किसी को गाइड करने में या किसी से बात करने में, इफ़ समवन्स फीलिंग लो। पर हाँ, ये भी, इसमें भी 1 घंटा मेरा एक्स्ट्रा, जो मुझे 1 घंटा कम करना है। यहाँ देख लो, 30 मिनट चला है रेडिट, तो मतलब 2-2.5 घंटे कम हो गए थे इजीली। The next is about expressing your real emotions. So, do you really have someone with whom you can express yourself freely? और जर्नलिंग। सो सबसे पहले तो यार, से नो टू नेगेटिव टॉक्स। ठीक है। कोई भी तुम्हें कुछ उल्टा बोलता है, कोई लो फील करवा रहा है, कहीं भी लो फील हो रहा है, ब्लॉक कर दो, जो करना है करो। सो आई हैव सच फ्रेंड्स कि वो खुद बोलते हैं कि आई नो यू आर वर्किंग हार्ड, कि पढ़ाई पे ध्यान दे वापस, बहुत घूमना फिरना फिरना हो गया, या यू आर डूइंग इट राइट, ये करो। नेक्स्ट इज ओवर थिंक विद समवन। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि किसी के साथ ओवर थिंक करो। वट डज दैट मीन? इफ़ यू आर फीलिंग लो, DM कर दो। मैं कितना कर देता हूँ, लो फील हो रहा है, लो फील हो रहा है। आई नो वी बॉयज़ आर टॉट टू बी टफ, बट एक ऐसा गंदा स्टेज ना आ जाए जहाँ यू विल रिग्रेट गोइंग। इससे अच्छा है किसी क्लोज हो के साथ वल्नरेबल हो जाओ। आई एम रियली लकी टू हैव सच फ्रेंड्स जिनके साथ आई कैन ओवर थिंक। So when I made my last video, I was lonely, and I used to write up my thoughts on a Telegram broadcast which I have made with just one subscriber, जो सिर्फ मैं ही हूँ, and gave myself pep talk। यहाँ वो खुद ही निकल जाती है मेरी पेप टॉक, 1 साल लोनली रहेगा, हिम्मत है, पेपर देना है, पढ़ ले, मेन से पहले क्या पिछले। पर अगर दोस्त हैं तो जस्ट टेक्स्ट देम कि आई एम फीलिंग लो फील हो रहे, देख लो यार, 11:30 बजे की बात है, 12 बज रहे हैं, एंड विल ऑनेस्टली फील हैप्पी। एंड मतलब यार, दोस्ती बढ़ती है इससे। यार नेक्स्ट है स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। कहीं लिख दो ना कि आई विल क्लियर UPSC CSC विद एन ऑल इंडिया रैंक अंडर 30। ये देख लो क्या लिखा है मैंने, करूँगा मैं रैंक क्लियर अंडर 30। ये लास्ट ईयर का है, तो यार मेन से पहले का हुआ तो नहीं, पर यार जब भी लो फील होता था मैं वही पढ़ता था या लिख देता था, मैं लिखता रहता था ये कि मैं करूँगा क्लियर, तो पॉजिटिव अफर्मेशन हो जाती है फिर खुद ही। देन सेल्फ केयर मेथड्स हैं। स्टार्ट मेडिटेटिंग। रसराज जी महाराज की लोफाए हनुमान चालीसा पढ़ लो, संकट है हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। देन वर्कआउट करो, वॉक करो, हॉबी को वापस रीस्टार्ट करो, जो तुम्हारा अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस हैं वो सही होंगे वापस। जंक फूड मस्ट बी अ बिग नो नो, मतलब करना तो चाहिए यार, होता नहीं है पर करना पड़ेगा। मल्टीविटामिन चेक रखो। ठीक है। देन अपना धूप में बैठ जाया करो, विटामिन D मिलेगा, विटामिन B, आयरन, मैग्नीशियम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, और सब कुछ है, पता ही होता है। तो देन सोना ढंग का करो यार, अपना 6 से 9 घंटे सो। ये भी नहीं कि 12-12 घंटे सो रहे हो, ये भी नहीं कि 4-4 घंटे सो रहे हो। रात में हो सके तो कम पढ़ो, सुबह का स्केड्यूल बनाओ, पॉसिबल है, अगर नहीं है तो कोई नहीं, अप्रैल मई में बना लेना सुबह का स्केड्यूल। देन यार अपने मीडियम टर्म टारगेट्स है जो 1 हफ्ते के बाद कर लेना। चेंज द सब्जेक्ट, मतलब जैसे इकोनॉमी मेरा पिलर 1 हो गया, अब मैं वापस हिस्ट्री में आ जाऊँगा, मैं मिडिवल ख़त्म करूँगा, देन पिलर 2, 3 साथ में हो जाएंगे, वो तो सारे बेसिक्स हैं। देन अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है, तो सबसे पहले टर्न ऑफ नोटिफिकेशंस, ब्लॉग यूट्यूब चैनल्स। या मैं जहाँ भी पढ़ता हूँ ना कि डे इन द लाइफ ऑफ एन एस्पिरेंट, या कोई बंदा 16 घंटे पढ़ रहा है, मैं ब्लॉग कर देता हूँ।
या ये नहीं पढ़ा तो यूपीएससी नहीं होगा। मैं तो ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, शिवन भाई और सत्यम भाई इसमें से एक को मैंने ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि दोनों की बातें रिपीट होती थी और कहीं कहीं क्लैश हो जाती थी, तो फिर अजीब सा लगता था सुनने में, तो एक ही को फॉलो करता हूँ बस मैं, जबकि दोनों अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं दोनों। ठीक है, देन लीव कर दो, म्यूट कर दो या आर्काइव कर दो टेलीग्राम चैनल, सभी 100 टाइप के मटेरियल आएंगे, 100 टाइप की टेस्ट सीरीज आएंगी, 100 टाइप के शॉर्ट नोट्स आएंगे। तुम नहीं नहीं पढ़ पाओगे, फोमो होगा बस। ठीक है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, रेडिट, यहाँ दोस्त होते हैं तो इसलिए यार लिमिट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड राइट समवेयर, ये शिवन भाई ने लिखवाया था पिछली बार, मुझे याद है। तो कि अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ तो क्या होगा, प्रीलिम्स ना क्लियर हुआ तो क्या होगा। तो मेंस कोर्स करना है, ऑप्शन सिक्स की तैयारी करनी है, संस्कृत पढ़नी है, जिमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, और प्रीलिम्स हुआ जो हो गया था। तो ऑप्शन की सिक्स की तैयारी, बस यही नहीं हो पाई, बाकी तो सब हो गया था। ठीक है, तो एंड मैं तो एक और चीज़ बोलूँगा, कहीं लिखना कि तुम्हारी अचीवमेंट्स क्या रही हैं आज तक, कि हाँ कोई ऐसा स्टेज था कि तुम्हें सबने बोल दिया था कि तुमसे नहीं होगा पर तुमने किया। इट कैन बी एज सिंपल एज तुमने अपने क्रश को बताया यार, तो लिखो। या तुमने मेडल जीता, तुम साइकिलिंग रेस में तुम फर्स्ट आए, या तुमने डिबेट में जीता मेडल। बहुत चीज़ें होती हैं, स्कूल लाइफ में होगी, कॉलेज में होगी, अभी हो रहा होगा। इट कैन बी एज सिंपल एज यू मेड समवन हैप्पी, यू मेड समवन स्माइल। तो लिखो यार ये सब कहीं, तो उसको पढ़ना वापस जब भी लो फील होता है फिर। देन अपनी टेस्ट सीरीज़ यार, अगर 60 to 70% तुम्हारा सिलेबस हुआ है तो लगा लेना। अब टेलीग्राम पर 100 टाइप की टेस्ट सीरीज़ आएंगी, चलो 100 ज़्यादा बोल रहा हूँ, 20 टाइप की टेस्ट सीरीज़ आएंगी। मुझे याद है मेरे फर्स्ट यूनिट में मैंने फोल्डर्स बनाए हुए थे कि विजन की ये है, नेक्स्ट की ये है, वाजीराम की ये है, दृष्टि की ये है। बट लास्ट में मैंने सेक्शनल सिर्फ विजन के दिए थे। एक अभ्यास का टेस्ट दिया था मैंने, 33 नंबर आए थे मेरे, क्योंकि वो सारा PT 365 से ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ी थी तब तक। एंड तो मैंने वाजीराम की फुल टेस्ट लगाए थे और आतिश सर के फुल टेस्ट लगाए थे, विच हेल्प मी टू क्लियर उस साल का प्रीलिम। ठीक है, देन अब आई एम रियली होपिंग कि यू विल बी बैक ऑन ट्रैक। तो यू विल हैव टू क्रिएट अ शेड्यूल टिल 26 में, जिस दिन प्रीलिम्स है। एंड शिवन भाई की वीडियो बहुत अच्छी है, ये लास्ट ईयर की वीडियो बनाई थी उन्होंने, मैंने यही देखी है, इस साल वाली मैंने देखी नहीं तो उसमें कमेंट नहीं कर सकता। तो इस वीडियो को देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो है ये। एंड यू विल हैव टू ब्रेक योर बड़े बड़े मंथ्स एंड वीक्स के टारगेट इनटू स्मॉलर डेज। तो यार मुझे तो वो याद आ रहा है, सत्यम गांधी जी रैंक 10 आए थे 2-3 साल पहले, उन्होंने बोला था कि मैं हर दिन का मेरा स्केड्यूल था, मैंने ये पढ़ना है, तब लगता था कि कौन कर सकता है ऐसे, बट अब पता लगता है कि यही करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है, यू विल हैव टू सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ़ यू रियली नीड इट। ठीक है, तो अपना टेलीमानस का नंबर भी है, कॉल करके देख लेना, फ्री हेल्पलाइन है। एंड ऑनेस्टली इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। मैं तो दोस्तों के पास जाता हूँ एंड आई रियली फील फ्रेश उसके बाद, पर प्रोफेशनल हेल्प भी लेनी चाहिए। ऑल्सो आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके बारे में। ये वापस मैंने शेन भाई की वीडियो से ही उठाया हुआ है कि रिमेंबर 80% इज़ मोर देन इनफ। दे विल ऑब्वियसली भी बैड डेज जब मे बी तुम्हें 2-3 दिन तो पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट वरना बर्नआउट होगा। लाइफ एंड डेथ का इशू नहीं है ये। ठीक है, नेवर प्लेस द एग्जाम ओवर योर फैमिली और योर मेंटल हेल्थ, वरना you'll destroy your attempt. ठीक है, also please don't ruin your relationships because of this exam. I have seen myself wasting my whole 2 से 3 weeks just overthinking about कि मेरी लाइफ पूरी वेस्ट है, पहले की लाइफ मेरी अच्छी होती थी और नहीं हुआ तो क्या होगा। So a lot of people aren't able to study hard because they are trying too hard to study hard. So basically तैयारी करो, टेंशन ना पालो, बेस्ट देना है ना। एंड अगर यहाँ तक पहुँच गए, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, लिखी नहीं मैंने, कि नो वन सेड इट इज़ राइट और रॉन्ग, इट इज़ सब्जेक्टिव। तो रहने दो ना सब्जेक्टिव यार, समटाइम्स यार जस्ट टेक्सटिंग समवन कि आई नो यू विल डू इट एंड आई डू ट्रस्ट यू, एन्जॉय द प्रोसेस। तो यार दीज वर्ड्स कैन रियली डू वंडर्स ऑन द अदर पर्सन लाइफ। तो अपने दोस्त को भेजना कभी है।